What's your name? My name is Ashwin Kohli. What are you going to be singing for us today? I'm singing a Punjabi song, Punjabi folk, Bajre da Sitta. Oh, I love that song. It's a beautiful folk song. What inspires you? Surinder Kaur, our Punjabi culture, our language, the way we carry our music with us. It's like Bhangra everywhere, so I just love that and it inspires me always. If you get to perform on the main Mosaic stage, how will that make you feel? Oh my God, out of this world. Seriously, I have that level and I want to achieve it. I'm just thinking if I can make it and have the studio thing which they have introduced as the winner prize or something. So I just want to enjoy that one and experience it. My name is Ashwin Kohli. Hi, Ashwin. I am here to perform Punjabi song Bajre da Sitta. Ooh, lovely. I'm a little bit nervous, I must say. Me too. बाजरे दा सिट्टा वे असां टल्ली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा माइया वे असां गली विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा बैके तेरे सावे सजना दिल दा हाल सुनावा शाला किधरे दुनिया जावे दरस तेरा मैं पावा कदे भी दूर न होवा गमा विच चूर न होवा मिश्री तो मिठा है तो निम नालों कोड़िया बाजरे दा सिट्टा वे असां टल्ली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा माया. It's very, very nice. Jora, you speak Punjabi, Hindi? Punjabi. Punjabi. Mostly. When you say second time Bajreda, should that be on a little lower tone? Na 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 na. Na 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 na. Yeah. Is it like that, or am I just used to the old tune? Actually, it's a new version. It's a new one. Oh, it's new a version. reproduction. Not the old one. It's from the movie. Okay. from, So then, for people like me Folk melody, who are right? used to this, because we've been listening to this song for like ages, Old. and you might want to do a little part from the original so that you're not misunderstood. Then we'll say, okay, so she's now improvising. You know what I'm saying? Yeah. Otherwise, it gives a little feeling as if you went wrong somewhere, which you did not, because I didn't know I that you were understand. singing the remix or reproduced version. Good job. If And you want, I can sing an old one, Jutti Kasuri. If you all I'm saying is, you do whatever you like, but if you throw in one from the old one, then we'll all know, oh, she remembers the original as well, but now she's... He's talking about the alterations, like Yeah. one line you can say, Yeah. sing like that. Okay. I And the love best your part energy, was your Ashwin. presentation. You kept us involved, you You had were eye amazing. contact, you were the best. Thank you Though so much. you were a bit confused, I don't know what pressure was there, but I could see the pressure, and the moment you ended up with the song, you were like, So I have a question. Why did you choose this song? I mostly enjoy Punjabi folk songs, like since childhood. These songs, Jutti Kasuri, like Surinder Kaur songs, these are into me. Okay. I can feel it. I just love it. There are so many old songs, like Ve Lede Menu Makhmal Di Pakhi Kunguruan Wali by Sir. I love them. I have sung them at my school, like back when I was in grade 4. I started doing this, and why I chose this song specifically, it's done by my dad. Oh, okay. From grade 4 till now, he's the one who's handling it.
I Okay. just give it to him. Come on, these are the songs. Tell me, I'll do it. You did So, good okay. justice. Can you sing 2 lines of the song? That song, the one you sing? Which- 2 lines of that song you were saying. You were Jutti mentioning. Kasuri? Yeah. जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया जिन्ना रहा दी मैं सार ना जाना जिन्ना रहा दी मैं सार ना जाना ओनी राही वे मैनू मुड़ना पिया ओनी राही वे मैनू मुड़ना पिया Well done. अश्विन, यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो पूरा आई कॉन्टैक्ट्स लगा करके और जजेस के साथ, आई नो इट्स नर्व रेकिंग टू बी ऑन दैट साइड, बट फिर भी यू ओन द स्टेज लाइक अ स्टार. फॉर मी इट वाज अमेजिंग, क्योंकि आपने ना एक्सप्रेशन भी उतने ही दिए जो गाने में रिक्वायर्ड थे. आई सी माई सेल्फ इन यू, सो आई सी दैट द वे यू डू इट, इट्स अ कंप्लीट परफॉर्मेंस. Well done. My name is Harshal Gala. What are you going to be singing for us today? A soulful song, I guess everybody would know, Abhi Mujh Mein Kahin by the legendary Sonu Nigam. That's a beautiful song, especially the version where his son sings is so heartwarming. What inspires you for music? It's the peace that I get from singing, and I guess I get lost in music. That's what I can say. Good afternoon. Good afternoon. My name is Harshal Gala. What are you singing today? A legendary song, I would say, a national award-winning song, Abhi Mujh Mein Kahin. Sorry? Abhi Mujh Mein Kahin by Oh, Sonu wow. Nigam. Beautiful. Wow. Okay. Would love to hear that. Yeah. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी. कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. अब ये जो आपने कहा ना, यहाँ से एक दफा फिर गा के सुना मुझे. अब है सामने, यहाँ से, यहाँ से इस सुर से. अब है सामने, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. ये जो नोट्स होते हैं ना, जो 2 वर्ड्स के बीच में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं. अगर ये सुर में ना हो ना, तो पूरी लाइन आउट लगती है. जैसे कि अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. समझ आई आपको? गाना सिलेक्शन तो अच्छे गाने की, लेकिन उस गाने को गाने के लिए
या तो उसको फिर प्रैक्टिस पूरी कियो कि मुझे वो गाना है तो वो पूरा वैसा गाऊं, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन होती है ना, जो दो लाइन दो वर्ड्स के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, ये याद हमेशा रखना अपने लिए। आपने अच्छा गाया, आपका टोन भी अच्छा है, लेकिन जब आप किसी गाने का उठाते हैं ना तो होता ये कि मुश्किल गाना बहुत सारे लोग उठाते हैं कि मैं अपने ऑडिशन में मुश्किल गाना गाऊंगा तो मैं इम्प्रेस कर दूंगा, लेकिन उस मुश्किल गाने को उठा के या कोई सरगम कह के अगर उसको पूरा जस्टिस नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। एक चालाकी और भी कर सकते हैं आप, वो ये है कि जब कॉन्टेस्ट में आए आप तो अच्छा रहता है जब आप गाना थोड़ा सा हल्का, ये गाना बहुत मुश्किल है और सोनू जी का वैसे भी उनका इट्स हिज फेवरेट सॉन्ग, तो वो हर शो में इस गाने को गाते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, इसमें खासकर जब जो लैंडिंग नोट्स एंड जो सेंटेंस के एंड में है ना, वहाँ पे सांस आपको अभी काफ़ी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कॉन्टेस्ट में ऐसे गाने गाओ जो थोड़ा सा निकल जाएं, नज़रअंदाज हो जाए। अब ये गाना इतना अच्छा है और इतना पॉपुलर भी है, हम तो इतना गौर से सुनते हैं सारे, तो फिर वो प्रॉब्लम्स निकालना, जिसे कहते हैं नुक्ताचीनी करना, वो आसान हो जाता है। आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ और आपने अटेम्प्ट किया वो मैं नंबर तो कम नहीं करूँगा, जो कहा वो कहा। वेल डन, वेरी गुड जॉब। Thank you so much. Thank you. What's your name? Fatima. And what are you going to be singing for us today, Fatima? It's going to be Aaj Jaane Ki Zid Na Karo. Oh, that's a beautiful song. What inspires you? Yeah, I've been singing that since I was 15 or something. I used to sing a lot in my school days. This is after a very big gap, so let's see how it goes. That's great. This is your coming back to music. How did you hear about Rising Star? I actually heard the last participant sing in the last concert in Celebration Square, and that's how I got to know the name of the Rising Star thing. But it just popped up on my Instagram, and I was like, this is nature telling me, universe is sign to, go for it. So yeah, I'm here. Hi, my name is Fatima. I'm going to sing Aaj Jaane Ki Zid Na Karo. Wonderful. Nice. आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, जाने की जिद ना करो। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं करने के लिए, मैं चाहता हूँ पहले ये लोग बोल लें फिर मैं पूछूंगा आपसे। नहीं, आप बोलिए, कोई बात नहीं। पहला सवाल ये है कि तबला किसने आपको बताया, अभी दिया था या आपको कि इसके साथ गाना है? So I was looking for tabla loops. Then I found a channel on YouTube. I don't have any help. I am not classically. So you know what beat is it? It's Deep Chandi. तो आपको लगता है ये गाना इसके ऊपर? No, मुझे किसी ने suggest किया था. आप 2 लाइन ना
इसके बिना गा के बताएं. Sorry? हाँ, इसके- 2 इसके लाइनें बिना। आप गा के बताएं, लेकिन जो 2 लाइनें अभी आपने गाए हैं वो बेटर थी जी। तबले के साथ. तबले के बिना I better agree with थी. that. हाँ. Yeah. Because the It requirement would- was to provide karaoke. I did not have that. This is the best I could do. अच्छा, गाना भी आपने यही गाना था? हाँ जी. अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये कि आपने किसी से सीखा है? नहीं, नहीं but सीखा ना. आपने क्यों चूज किया था ये गाना? I've been singing this for a very long time. This is why you picked this Yes. song, because you were master like in this song and you No, I like you it. thought that you can sing this song and I just have a very deep emotional connection to it. So ये आपकी आवाज को सूट कर रहा था गाना. You have a very beautiful voice, thank you so much. good texture, Thank you. और ये गाने के साथ जा रहा था. Thank you. बट वो तबला नहीं चाहिए था इसके लिए. I agree. ये आगे- आपने तानपुरा पीछे क्यों नहीं लिया? हाँ, तानपुरा ले सकते That थे. would have actually suited you. आपको सुर मिल जाता. सुर नहीं दिया ना. नहीं, तबला चलता, लेकिन ये तबले I have की जो more- ताल ठीक वो नहीं सही है. हाँ. ये है दीपचंदी में. जी जी. ये जो गजल है ना, इसको आप ऐसी 2 लाइन, आपको दूसरा वर्स आता है? वक्त की कैद yeah, में. sure, of course. वक्त की कैद में आता है. 2 लाइनों सुनाए. वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं. चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं. इनको खो कर मेरी जान जा उम्र भर ना तरसते रहो. जाने की जिद ना करो. Very nice. It was पता है, एक चीज मिसिंग है इस गाने में, जो मुझे मुझे आवाज भी अच्छी लग रही है, टेक्सचर भी अच्छा है, लेकिन वो मुझे कनेक्ट नहीं होने दे रहा उसके साथ. I think it's the feel. It's the feel. It's the feel. Yes. It's beautiful. It's you have a beautiful voice. We just wanted to listen to. Keep few it up. lines. Thank you. Amazing, beautiful. Thank Thank you. you. Thank you, Yeah. Fatima. What's your name? Vasundhara. Vasundhara. What are you going to be singing for us today? So I'll be singing Oh Saki Saki. Oh, that's a fun song. What inspired your selection of it? Recently I watched Indian Idol and so there's this one singer who inspired me a lot, and this was one of my favorite songs of hers. So that's the version that I'm going to be singing. Thank you so much. Good afternoon, judges. My name is Vasundhara. I will be performing Oh Saki Saki. There's this version that I heard at Indian Idol, and that's the version that I have taken inspiration from. Okay. All the best. ओ शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, ओ शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, ओ शराबी क्या शराबी ऐसे जो तौबा करे, ओ शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम ना हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम ना हो, ओ जाकी जाकी रे जाकी जाकी पास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ जाकी जाकी रे जाकी जाकी पास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, ओ शराबी क्या शराबी ऐसे जो तौबा करे, ओ शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम ना हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम ना हो, ओ जाकी जाकी रे जाकी जाकी पास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ जाकी जाकी रे जाकी जाकी
Thank you. Why did you choose this song? I usually try to sing out of my comfort zone. So this was the song that I have been challenging myself to. So that's why. Yeah, because so the half of the song is sung by Sukhbinder ji. So वहाँ पर आपको you struggling with the notes because it's low and for female voice it's higher. ओ साकी सागी रे सागी साकी यहाँ फंस रहे हो आके. तो ऐसा गाना ही क्यों चुना जो आधा मेल का था और वो मेल वाला पार्ट तो आप कह ही नहीं सकते. एक्चुअली वही इसलिए मैंने स्टार्टिंग में की, जो इंस्पिरेशन थी वो एक फीमेल सिंगर ने एक रियलिटी शो में गाई थी. सो दैट्स द इंस्पिरेशन दैट आई टुक फ्रॉम. Do you know the verse part? Na 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 na. Sing that. मैं कदे में आने वाले मैं खुशी तो छोड़ दे, ना 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 खुशी ना छोड़ दे. Na 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 na. नज़दीक है तेरे दीवाने की हालत. No. So I feel the changes in the octave which you're making, that's confusing you a little bit. But and I think अभी जो आपने track चलाया ना, were you able to hear yourself? Very little bit. And track सुन रहे थे आप अपनी? थोड़ा सा, बहुत हाँ, ज़्यादा. क्योंकि I could figure out कि आपको track नहीं सुनाई दे रही थी. You were missing some beats. This is what I could understand. मैं बोलने वाली थी पीछे जाओ या तो monitor के पास, क्योंकि आपको अपनी track नहीं सुनाई दे रही. So you were and singing on a track is of course difficult because वो एक track बनी हुई है, आपको उसके साथ jump करना है, right? With live musicians, it's completely different. I know you have that texture, and I personally believe it's good to challenge yourself. Thank It's you so good. much. It's nice. Thank you so much. Welcome to Mosaic Rising Star. What's your name? Kiran. What are you going to be singing for us, Kiran? I'm singing a Hindi song. Yeah. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं from the Shahrukh movie, Yes Boss. Okay, what inspired you to choose that song? I sing a lot on Smule platform. So this song I keep, singing, and this is somehow I like it. So I'm comfortable with this, so I'll try this. Hi, my name is Kiran. Hi Kiran. Hi. Welcome. So I'm going to sing मैं कोई ऐसा गीत गाऊं from the Yes Boss movie. Okay, nice. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. तुमको बुलाओ ये पल के बिछाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं पे आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. आप हिंदी बोलते हैं? Not mother tongue, yeah. Yeah, your mother tongue is not Hindi, na? Yeah. What is your language? Malayalam. Oh, Malayalam. Okay. Yeah, I could hear that. Okay. That the Hindi is not your first language. Right. So yeah, can you your first part, your astai of the song, the first part of the song was better than your second part. Oh. Can you sing that? मैं तितलियों के पीछे यहाँ से गा सकते हो? Can you sing this song? Okay. मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंगनी वो रोशनी है, ये रंग है वो रोशनी है.
खड़े सो रहे हैं. It's a very straight. ये मैं तितलियों के बीच भागूं. Whatever. मैं नारा 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 नारा. ये रंग है ये रोशनी है. ना 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 ना. सीधा है. ये ये रंग है पर रोशनी है. तुम्हारे पास दोनों लाओ. जितनी खुशबुएं भाग में मिले. हाँ जितनी खुशबुएं भाग में मिले. मिलाओ कि तुम हो जा जहाँ पे एक पल भी ठहरो. ये गुलसिता हमारा मगर. Yeah, you understand what I was trying to say. Yeah, okay. Overall, it was a good song. अच्छा गाया. Song selection is also song very selection good. was good. You have a good voice. And it's a suitable song for For you. auditions. Yeah. Yeah, Very light and very. Yeah. It's yeah. very So good. it's good, very good. Thank you. Thank you. Welcome to Rising Star by Mosaic. What's your name? Ayubowan. My name is Hasantika Korituaku. I'm from Sri Lanka. Thank you. Great. And what are you going to be singing for us today? Actually, I'm singing a Sinhalese song. It's sung by Lata Mangeshkar ji for the movie called Sada Sulang in 1950s. So I'm going to sing that. Hello, my name is Hasantika. I'm from Sri Lanka. I'm singing a song which sung by Lata ji for Sri Lankan movie called Sada Sulang. Oh, nice. Nice. Wonderful. I really liked the way you were
changing the distance from yourself to the microphone because you have quite a dynamics there. So they're loud now notes and they're soft notes, and you're controlling very, very well. Very nice, powerful voice. Good job. Good job. Yeah, I love your vocal texture. It's beautiful, and the control was really good, and I love your performance. Congratulations. Thank you very much. It was very nice listening to your song. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you. How was this performance for you? I know you performed in your mother tongue. Tell us a little bit about that. It was great. I'm so happy that I could perform something that belongs to me. So I think judges will enjoyed it. They have a really good feedback. Okay, that's great. And do you think you're going to win? Yes. I think, I don't know. So दोस्तों, ये थी हमारी प्रेजेंटेशन मोज़ेक राइजिंग स्टार थिएटर राउंड। अब चलिए जजेस के पास चलते हैं, इस इवेंट और इस ऑडिशन राउंड और इस थिएटर राउंड के बारे में उनका क्या कहना है। तो जजेस, आपने सारी परफॉर्मेंस देखी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस सिलेक्शन के बारे में? मुझे बहुत खुशी होती है देखते हुए कि जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो अपना जो है ना, एक डर होता है, खौफ होता है, उसको छोड़ के बाहर स्टेज पे आ रहे हैं। अच्छा है उनको एक ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे अपना वो टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। तो खुशी होती है देख के। और ये ऐसा नहीं है कि वो आज आए, उन्होंने अच्छा अपना कमाल दिखाया और यहाँ पे बस हो जाती है। इट्स अ जर्नी। मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने हमारी बातें सुनी हैं उनको थोड़ा उस पर ध्यान करेंगे और डेफिनेटली अगर वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दे विल डेफिनेटली गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। थैंक यू। सो अंकिता, हम लोग चाहते हैं कि जनरली हमारे कंटेस्टेंट अपनी पसंद का गाना गाएं, उनसे उनके गाने भी मंगाते हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि हमें उनको एक्सटेम्पोर यहाँ पर भी एक गाने देना चाहिए, या क्या हमें अपने फॉर्मेट में चेंज करना चाहिए? आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई फील वो ऑलरेडी बहुत नर्वस होते हैं। तो अगर हम ये कर सकते हैं कि अगर एक कंटेस्टेंट को हमने देखा एंड वी सी दैट उसने पहला गाना काफ़ी अच्छा निभाया है एंड हमें आगे और देखना है कि हाउ वर्सेटाइल अ सिंगर इज़, एंड वी फील देन वी कैन, आई थिंक प्रॉब्ली हम अपनी पसंद का या उनको कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ आप अपनी पसंद का कुछ गा के बताएं, जो कि हम उनको पहले ना बताएं, उनको पहले से ना उनको हेड्स अप दिया जाए, उनको यहीं पे आके बता दिया जाए कि आप अपनी पसंद का कुछ भी गाएं। आई थिंक दैट्स गोइंग टू मेक देम मोर कंफर्टेबल, वो अगर वो अपनी पसंद का, क्योंकि इवेंचुअली हम यहाँ पे बैठ के उनको यही देखना चाहते हैं कि वो अपनी पसंद का गाना भी कितना फील करके गा रहे हैं जो उनके कंफर्ट जोन का है। दैट्स गुड, थैंक यू। आपकी कोशिश रहती है उनका लहजा सुधारना, उनके शब्द सुधारने, उनके बोलने के तरीके पे आपके कमेंट आते रहे हैं इस इवेंट में हमने देखा। तो क्या आप चाहते हैं, क्योंकि हमारे कंटेस्टेंट एक अलग अलग एरिया से आते हैं, उनका बोलने का तरीका अलग अलग है, उनकी ज़बान अलग है, वो अलग तरीके के गाने गाते हैं, तो उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ साथ कर सकते हैं? आपकी राय उसमें? नहीं, मेरे लिए मैं ये नहीं उनका सुधारना चाहता था, उनका डिक्शन या उनकी भाषा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रोनाउंसिएशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ हमेशा सुर से होती है। कोई एलियन भी अगर सुर में गा रहा है तो मुझे वो अच्छा लगेगा, मुझे उसकी भाषा आती है, लैंग्वेज आती है, नहीं आती मुझे समझ आती, मुझे सिर्फ गाना सुर में समझ आता है। अगर सुर में हो तो गाना अच्छा है, सुर में नहीं हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जो सुधारने की कोशिश कर रहा था वो उनको टेक्निक समझा रहा था कि आप अपने गाने को बेहतर कैसे कर सकते हैं। सब अच्छे थे, सब ने अच्छा गाया, कोई उसमें ख़राब नहीं था, लेकिन वो और अच्छा कैसे कर सकते हैं मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था। दैट्स गुड। सो एक चीज़ मुझे यहाँ से मिलती है कि हम एलियंस को भी यहाँ ला सकते हैं। सो अगले साल हम कोशिश करेंगे कि हम एलियंस के भी रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन पे फिर से लेके आते हैं। आप लोगों ने देखा कि हमने एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उसमें से इन लोगों को आगे चुना। अब इन लोगों में से हम अगले राउंड में जा रहे हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट तैयार है, ये कंप्यूट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है अगले राउंड में हम जब लोगों को ले जाएंगे उनके लिए क्या मैसेज है एडवांस में कि वो लोग उस राउंड को अच्छे से पार कर पाएँ? आप कोई भी आंसर दे सकते हैं इस चीज़ का। आई थिंक वही जो हम सबका मुझे लगता है कॉमन ओपिनियन होगा कि गाना ऐसा जो वो पूरा निभा पाएँ, मतलब जिस पे वो खुद
मास्टर कर चुकी हो ना, अगर वो गाना रमा हुआ होता है ना हमारे अंदर, तो हम स्टेज पे जाके उस पर परफॉर्म भी कर सकते हैं. अब अगर हमें लिरिक्स याद नहीं है या हमने कोई नया गाना पकड़ लिया सिर्फ चैलेंज दिखाने की उसे, तो वो हम पूरा निभा नहीं पाते, और जो हमारा पोटेंशियल है एज अ सिंगर वो भी हम नहीं दिखा पाते पूरा. सो आई थिंक सिंपल बट मतलब उसको पूरा जस्टिस करें. कईयों को शायद कईयों को लगता है कि अगर हम कोई मुश्किल गाना चुन लेंगे तो वो शायद ऑडियंस को भी और जजेस को भी इम्प्रेस करेगा. मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई मुश्किल गाना चुन लें और उसको ठीक से निभा ना पाएँ तो वो फिर वो एक रिवर्स इफेक्ट पड़ता है उसका. एक मुश्किल गाना है और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाना है. जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाना होता है उसको हर आदमी जज कर सकता है, उसके बारे में नुक्ते पकड़ सकते हैं. तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसा गाना जो अच्छा हो, संगीतमय हो, बहुत ज़्यादा हर एक की ज़ुबान पे ना चढ़ा हो, वो इन लोगों को गाना चाहिए? और आसान भी हो. और आसान भी हो, जो वो निभा पाएँ, जो अपनी रूह से गाएं, दिल से गाएं, उसको निभा पाएँ, इतना ही बहुत है. अच्छा, ज़्यादातर आर्टिस्ट हमारे ना बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करते, तो इन लोगों को स्टेज को उतना लंबा हैंडल करने की आदत नहीं है. तो क्या हम इनको एक गाना, दो गाना इस तरीके से इनको अगली बार कुछ गाइडेंस दें, या इनको टाइम दें कि आप इतना लंबा गाना गाएं? आप क्या कहते हैं आप लोग उस पर? नहीं, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. बात जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि उनके पास उनको इतने गाने गाने की आदत नहीं होती एट ए टाइम. नहीं, तो यही जो अभी अंकिता ने पहले कहा कि जो भी आप गा रहे हैं उसको पहले आप खुद से तो सीखें, उसको याद करें, उसको इतना अच्छा तैयार कर लें कि जब प्रेजेंट करें तो वो बैंग ऑन हो, बिल्कुल जाके प्रॉपर गाएं उसको ना. एक गाना हो, दो गाने हो, 10 गाने हो, बस तैयारी पक्की होनी चाहिए उसको गाने के लिए. जब आप किसी भी आपने महंगे कपड़े पहने होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल फ़र्क होता है एक आदमी का. ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने गाना तैयार किया होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल फ़र्क होता है. आपको पता होता है मुझे अब स्ट्रगल बाकी चीज़ों में नहीं करनी, गाना तो मुझे आता है. आई थिंक उनको एक मैसेज दिया जा सकता है कि फॉरगेट अबाउट दैट, इट्स अ कॉम्पिटिशन. ये परफॉर्मेंस हो रही है, इट्स अ कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस. तो तब आप क्या करोगे? इमेजिन लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. फॉरगेट दैट इट्स अ कॉम्पिटिशन. मुझे ये लगता है कि कोई भी कंटेस्टेंट जो यहाँ पे इस मंच पे आता है वो बिना तैयारी के नहीं आता. ही डज द बेस्ट टू हिज कैपेबिलिटी. मेरे ख्याल से ज़्यादा इसमें ज़रूरी है सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग. ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने सुना था हाँ ये बहुत ही पेचीदा गाना ये वो है, और लोग भी कुछ कह देते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता हूँ. मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मुझे लगता है कि जब लोगों को होता है ना कि मैंने ऑडिशन देना है, तो वो बाकी यूट्यूब पे जाके ऑडिशन देखना शुरू कर देते हैं कि लोगों ने क्या गाया, उसमें से चुन लेते हैं कि किसने कितना मुश्किल गाया तो मैं भी ये गा लेता हूँ. ऐसा होता नहीं है. अब ये नहीं कि आपने सुन लिया, देख लिया कि किसी ने बहुत अच्छा गाया मैं भी. अभी होता है ऐसा कि अपने आप को चैलेंज करना कि मैं यही गाऊंगा, मुझे आता है या नहीं आता, मैं तो यही गाऊंगा क्योंकि मैंने सुना और मुझे लगा कि ऐसे ही गाना चाहिए. वो क्योंकि ना एक्चुअली कंटेस्टेंट्स के माइंड में ये होता है कि जितना डिफिकल्ट होगा ना उतने हमें उस तरह से हमें जज करेंगे. ऐसा होता नहीं ऐसा है. नहीं होता. वही गलती है बस. हाँ. वही तो गलती है. कंटेस्टेंट के लिए मैसेज यही है कि अच्छा गाइए, मेहनत करके गाइए, पका हुआ गाना गाइए, जो आप अच्छे से निभा सकें वो गाइए, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हमारे अगले राउंड में आइए. ये एक मैसेज. छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा कि वैसे तो काफ़ी लोगों को पता है लेकिन वो कोशिश नहीं करते. कई गीत वो चुन लेते हैं और उनको एक फोबिया होता है कि मैंने ओरिजिनल स्केल पे ही गाना है. वो एक मेरे ख्याल से गलत बात है. हर किसी की स्केल, हाँ, हर एक का अपना टोनल क्वालिटी है. आपको किसी से कंपेयर नहीं करना. अब रफ़ी साहब के गाने मोस्टली काफ़ी हाई पिच पे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी पिच पे ही गाना है. हाँ, अगर आप किसी भी गीत को एक आध नोट नीचे कर लें तो ज़्यादा पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसको नीचे नहीं करेंगे और फिर जब ऑडियंस को सुनने में आएगा कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, आई थिंक दैट बिकम्स क्वाइट अ वर्स. they need to know the right scale. ये हाँ, ये बात कुछ अवेयरनेस के साथ होती है. बात ये देखें, बहुत एक आम आदमी को नहीं पता होता कि ये स्केल क्या है और इस स्केल से मुझे कैसे गाना चाहिए इसको नीचे करके. तो ये बिल्कुल ये बात से अब लोग सीखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, तो करना चाहिए. देखें, मॉडर्न ज़माना है, अब तो AI का ज़माना है, की ट्रांसपोज हो जाती है, सबको पता है. अब आप देख लें, ओरिजिनल लिख लें कि ये कहाँ से है, कि सी से है, तो मुझे आधा सुर नीचे करूँगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा, तो वहाँ से गा दें.
तो मैं इसीलिए थोड़ा बीच हाँ। में इसको लाइटर मूड में लाने के लिए कह रहा था, आप चालाकी भी कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब यही था कि आप चालाकी बिल्कुल यूज करो, हाँ, और वो आपकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाएगी। एंड ऑफ द डे आपको खुद को मजा आना Absolutely. चाहिए, जजेस को मजा आना चाहिए, ऑडियंस को मजा आना चाहिए, और एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए, जी। और हमारे मोज़ाइक स्टार को भी स्टार मिलने चाहिए। दैट्स इट। जी, थैंक यू जजेस फॉर योर गुड कमेंट्स। इस थिएटर राउंड की क्लोजिंग यहाँ पर होती है, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी मोज़ाइक राइजिंग स्टार 2025 हमारे मेन स्टेज पर 2 अगस्त 2025 को, और वहाँ पर होगा एक नए सितारे का उदय, एक नया सितारा जन्म लेगा मोज़ाइक राइजिंग स्टार के इस इवेंट से। थैंक यू।